السلام علیکم دوستو، میں ہوں راؤ قمر رضوان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ رات کا وقت تھا اور میں قبرستان میں بیٹھی تھی۔ میں نے کالے رنگ کے کپڑے پہن رکھے تھے اور میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں وہی لڑکی جو کبھی قبرستان کے پاس سے بھی نہیں گزرتی تھی، اور آج رات کو میں ایک قبر کے پاس بیٹھی تھی، بری طرح سے رو رہی تھی کیونکہ میری زندگی نے میرے ساتھ بہت ہی برا مذاق کیا تھا۔ میں رومان سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی، وہ میرے لیے سب کچھ تھا۔ میں اس کے لیے کچھ بھی کر سکتی تھی، ساری دنیا سے جھگڑ سکتی تھی، اپنے ماں باپ سے بھی جھگڑ گئی۔ ان کو کہا کہ آپ نے مجھے پال پوس کر بڑا کیا تو کیا انوکھا کام کر دیا، دنیا کے سارے ماں باپ کرتے ہیں۔ محبت کی شادی کرنا میرا حق ہے اور میں کر کے ہی رہوں گی۔ میرے ماں باپ میری شادی اس کے ساتھ نہیں کروانا چاہتے تھے کیونکہ وہ ایک غریب انسان تھا، اسی لیے انہوں نے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ تمہیں چننا ہوگا ہم دونوں میں سے کسی ایک کو۔ اگر تم نے اس کے ساتھ شادی کی تو ہم تمہارے لیے ہمیشہ کے لیے مر جائیں گے، چاہے زندگی میں کچھ بھی ہو جائے، ہم تمہاری مدد نہیں کریں گے۔ اور اگر کل کو اس نے تمہیں دھوکہ دے دیا یا تمہارے ساتھ کچھ برا ہو گیا تب بھی تم ہمارے پاس نہیں آؤ گی۔ میں رومان کی محبت میں اس قدر دیوانی ہو چکی تھی کہ میں نے کہا کہ آپ میرے ماں باپ ہو کر اگر مجھ سے دستبردار ہونا چاہتے ہیں تو میں کیا کر سکتی ہوں؟ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں بھی آپ کے پاس کبھی واپس نہیں آؤں گی، اپنی شکل آپ کو نہیں دکھاؤں گی۔ انہوں نے بھی تو اچھا نہیں کیا تھا میرے ساتھ۔ جب ان کو یہ بات پتہ چلی کہ میں کسی لڑکے سے باتیں کرتی ہوں، ان سب نے مل کر مجھے مارا تھا، مجھے کمرے میں بند کر دیا تھا، اور جب میں نے کہا کہ اگر محبت کرتی ہوں تو شادی کروا دیں تو انہوں نے میرے سامنے یہ شرط رکھ دی کہ یا اسے سلیکٹ کر لو یا ہمیں۔ آخر ایسی بھی کیا بات تھی؟ اگر وہ غریب تھا تو اس میں کیا غلطی تھی؟ غریب ہونا کوئی گناہ تو نہیں ہوتا، ہر انسان کبھی نہ کبھی غریب ہی ہوتا ہے۔ ہم لوگ کون سا امیر تھے؟ میرے بابا ایک سرکاری محکمے میں چھوٹے سے چپڑاسی ہی تو تھے، ساری زندگی ترس ترس کے ہی تو گزاری تھی۔ پھر وہ کیا چاہتے تھے کہ ایک چپڑاسی کے گھر کوئی بادشاہ رشتہ بھیج دیتا؟ ایسا تو نہیں ہوتا، غریبوں کے گھر رشتے بھی غریبوں کے ہی آتے ہیں۔ اگر رومان محنت مزدوری کرتا تھا تو اس میں کیا بری بات تھی؟ کم سے کم اپنے ہاتھ کی کمائی کھاتا تھا، محنت کرنے والا انسان تھا، اس کو مستقبل کی فکر تھی، وہ چاہتا تھا کہ وہ کچھ کرے۔ وہ یہ نہیں کہتا تھا کہ بس جیسا چل رہا ہے ویسا ہی چلتا رہے گا، وہ اپنی حالات بدلنا چاہتا تھا، اور ایسا انسان ایک دن ضرور کامیاب ہوتا ہے۔ جب بھی ہم کامیاب لوگوں کی کہانیاں سنتے ہیں وہ ایسی ہی ہوتی ہیں۔ میں نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ کر لیا، رومان کے لیے اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیا، بس ہم دونوں ہی تھے۔ اس نے 4 گواہوں کا انتظام کیا تھا اور ہم لوگوں نے نکاح کر لیا تھا۔ اس نے کہا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں نے کہا کہ تمہارے پاس محبت ہے، مجھے محبت سے زیادہ اور کچھ نہیں چاہیے۔ اس نے کہا کہ رہنے کے لیے ایک چھوٹا سا مکان ملے گا، میں نے کہا کہ میں اس مکان کو گھر بنا دوں گی، اور جب مکان گھر بن جاتا ہے تو وہ دنیا کی سب سے خوبصورت جگہ ہوتی ہے، پھر چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا، اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کبھی کبھی بہت بڑے بڑے گھر ہوتے ہیں لیکن ان کے اندر لوگ خوش نہیں رہتے۔ اس نے کہا کہ شاید میں تمہیں تمہاری پسند کے کھانے نہیں کھلا پاؤں گا، میں نے کہا کہ جو 2 نوالے تمہارے ساتھ مجھے نصیب ہو جائیں گے میرے لیے وہی اس دنیا کا سب سے مزیدار کھانا ہوگا۔ اس نے کہا کہ پہننے کو اچھے کپڑے بھی نہیں دے پاؤں گا، میں نے کہا کہ بس خود کو ڈھکنے کے لیے جو بھی مل جائے میں اسی میں خوش رہوں گا۔ اس کا کہنا تھا کہ تم نے ضرور کوئی خواب دیکھے ہوں گے جن کو میں کبھی پورا نہیں کر پاؤں گا، میں نے کہا کہ بس تم ہی میرا خواب ہو۔ اس کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے اور میری آنکھوں میں بھی۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کو قبول کر لیا، ہم ایک دوسرے کے نکاح میں چلے گئے، بہت زیادہ خوش تھے، کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ اس کے بھی کچھ رشتہ دار تھے جو نہیں چاہتے تھے کہ اس کی شادی ہو جائے، وہ بھی ناراض تھے، پریشان تھے۔ میں نے بھی اپنے ماں باپ چھوڑ دیے تھے، لیکن ایسا لگتا تھا کہ پھر ہم بھی اس دنیا کے سب سے خوش نصیب اور خوش لوگ ہیں، ہماری خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ وہ انسان مل گیا تھا جس سے مجھے محبت تھی اور جو مجھے بھی چاہتا تھا۔ اس سے زیادہ بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ ہم کسی سے محبت کریں، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن جس سے ہم محبت کریں وہ بھی ہم سے محبت کرے، اس سے زیادہ بڑی بات اور کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ میں بہت زیادہ خوش تھی۔ ہم لوگوں نے اپنے چھوٹے سے گھر کو سجانا شروع کر دیا تھا۔
मुझे सिर्फ रोमान का ही सहारा था और कोई नहीं था। वही था मेरे लिए सब कुछ। मैं बीमार होती तो वही मेरा ख्याल रखता। घर में जब तक वो नहीं होता था मेरा दिल परेशान रहता था। वही घर का सामान ला कर देता था। अगर वो घर पर नहीं होता था और कोई चीज़ ख़त्म हो जाती थी तो मैं बस चुपचाप बैठी रहती थी। उसने कहा था कि मेरे माँ बाप तो इस दुनिया में नहीं हैं और रिश्तेदार वैसे भी इसी तरह के होते हैं, लेकिन तुम्हारे माँ बाप एक दिन मान जाएंगे। मैंने कहा कि अगर वो नहीं भी मानेंगे मुझे तब भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसने कहा कि ऐसा क्यों कहती हो, तुम्हारे माँ बाप हैं। मैंने कहा कि हाँ, आपको पता है एक औरत के लिए ना तो उसका बाप बहुत ज़्यादा अहम होता है और ना ही उसका बेटा। उसके लिए सबसे ज़्यादा ख़ास इंसान उसका शौहर होता है। रोमान ने कहा कि ऐसा क्यों कहती हो। मैंने कहा कि मेरे बाबा बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यार करते थे मुझसे, लेकिन अल्लाह ने सब इंसानों को जोड़ों में पैदा किया है। मेरे बाबा का जोड़ा मेरी माँ है, वो दोनों एक दूसरे के लिए बनाए गए हैं। इसी तरह कल को मेरी औलाद होगी तो उसके लिए भी कोई बनाया गया होगा और वो दोनों साथ रहेंगे। लेकिन मेरे लिए तो आपको ही बनाया गया है और आपके लिए मुझे बनाया गया है। हम दोनों से ज़्यादा एक दूसरे के लिए और कौन ख़ास हो सकता है। रोमान कहता था कि तुम बातें नहीं करती हो, तुम जादू करती हो। जब तुम बातें करती हो तो तुम्हारी बातों में खो जाने का दिल करता है। जब तुम बोलती हो तो ज़िंदगी खूबसूरत लगने लगती है और जब हंसती हो तो ऐसा लगता है कि मैं इस दुनिया का सबसे ज़्यादा अमीर इंसान हूँ। तुम मेरे लिए सब कुछ हो। मैं तुम्हारे बगैर जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता हूँ। हमारी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा खूबसूरत होगी, हमारी ज़िंदगी मिसाली होगी, क्योंकि हमारे पास वो चीज़ है जो दुनिया की किसी भी चीज़ से ज़्यादा अहम है, और वो है हमारी मोहब्बत और एक दूसरे के लिए एहसास। वाकई घर में अच्छा खाना नहीं बनता था। रोमान ने मुझे कोई बहुत बड़ा तोहफा नहीं दिया था। घर भी छोटा सा था, आसमान नज़र नहीं आता था, बारिश नहीं देख पाती थी, लेकिन फिर भी मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। और मैं ये बात दिल से कह रही हूँ कि मुझे कोई मसला नहीं था, क्योंकि मेरे पास मोहब्बत थी, मेरे पास रोमान था। एक दिन मुझे मेरी माँ बाज़ार में मिली। आखिर मेरी माँ थी। उनको देखकर मैं आबदीदा हो गई। मुझसे रहा नहीं गया, जाकर उनसे गले लग गई। उन्होंने मुझे ऐसे झटका जैसे किसी फ़कीर को भी झटका नहीं देता। मैंने कहा कि अम्मी बस कर दें, कितना गुस्सा करेंगी। अम्मी ने कहा कि गुस्सा, हमें तुमसे नफ़रत है। तुमने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। तुम्हारे बाबा से लोग बार बार पूछते हैं कि तुम कहाँ चली गई हो, किसके साथ गई हो, तुम्हारी शादी कब की, क्या बताएं उनको, क्या कहें कि तुमने घर से भाग के शादी की है। मैंने कहा कि अम्मी ये गलत है, मैंने घर से भाग के शादी नहीं की। मैंने आपको बताया था और कहा था कि मेरी शादी करवा दें। जब आप लोग नहीं माने तो मैं बस घर से चली गई। उन्होंने कहा कि अच्छा, बड़ा तरीका आ गया है तुम्हें अपने गुनाह के ऊपर पर्दा डालने का। और सुनाओ क्या हो रहा है, कितने दिन पहले गोश्त खाया था, ये क्या फजूल से कपड़े पहन रखे हैं, और बाजार में क्या लेने आई हो, हाथ तो तुम्हारे खाली हैं। मैंने कहा कि पकाने का सामान लेने आई थी। शक्ल देखो अपनी कैसी हो गई है। तुम हमारी इकलौती बेटी थी, कितने नाजों में रखा हुआ था हमने तुम्हें, लेकिन तुम वो बदबख्त लड़की हो जिसने महल छोड़कर कुटिया को तरजीह दी। मैंने कहा कि कम से कम उस कुटिया में मैं खुश तो हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आप मेरी माँ हैं, सो आपसे मिलने चली आई। सोचा था कि माँ बाप के दिल बड़े नरम होते हैं, उनके दिल में औलाद के लिए नफ़रत नहीं आ सकती, लेकिन आपका दिल तो पत्थर जैसा सख्त है। सही कहता है रोमान, हर इंसान एक जैसा नहीं होता। मेरी माँ ने कहा कि किसने कहा था यहाँ आने के लिए, चली जाओ यहाँ से, दफ़ा हो जाओ। मेरी माँ ऊंची आवाज़ में बोली थी। आसपास बाजार में खड़े लोग और दुकानदार भी ये मंजर देख रहे थे। वो मुझे अजीब नज़रों से देखने लगे और मैं वहाँ से सर झुकाकर चली गई। घर आई तो बुरी तरह रो रही थी, रोमान का इंतज़ार कर रही थी। बस सोचा कि उसको देखकर ही सुकून मिलेगा, लेकिन आज का दिन ही शायद ऐसा था कि शाम होते होते मुझसे मेरा सब कुछ छीन चुका था। रोमान एक हादसे में जाँ बहक हो गया था। वो इस दुनिया से चला गया था। उसे कुछ कहने का मौका नहीं मिला, ना मुझे कुछ बताने का। पता नहीं कौन था वो जिसकी गाड़ी से मेरी ज़िंदगी की एक कीमती चीज़ भी ख़त्म हो गई। मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मैं भी मर जाऊंगी।
जैसे किसी ने मेरा गला पकड़ लिया हो और मुझे कहा जा रहा है कि लंबा सांस लो, लेकिन मौत नहीं आ रही थी। रोती रही, बिलखती रही, कहाँ जाती? माँ बाप के पास जाने का सोच भी नहीं सकती थी। मुझे तो आखिरी दफ़ा खुदा हाफिज़ कहने का भी मौका नहीं मिला। वो आम सी रूटीन के हिसाब से घर से निकला था। उसने कहा था कि रात को जल्दी आ जाऊंगा, लेकिन वो कभी नहीं आया। आज उसी की कब्र के पास बैठी रो रही हूँ। बुरी तरह से रोज़ आती हूँ। यहाँ 3 दिन हो गए हैं उसी दुनिया से रुखसत हुए। वो लोग उसे मुझसे छीन के ले गए, उसे मिट्टी के हवाले कर दिया। मैं कुछ न कर पाई। आज वो मेरे पास है, मैं उसकी कब्र के पास बैठी हूँ। उसे अकेला कैसे छोड़ सकती हूँ? फिर कल वो मेरे ख्वाब में भी आया था। कह रहा था कि अपनी ज़िंदगी जियो, मैं नहीं चाहता कि तुम उदास रहो। अगर वो यही चाहता था कि मैं उदास ना रहूं, तो मुझे छोड़कर क्यों गया? मैं यहीं बैठी बुरी तरह रो रही थी जब एक शख्स मेरे कदमों में आके गिर गया। वो खुद भी गिरा और किसी कांच की बोतल के गिरने की भी आवाज़ आई। मैं अपने गम में इतनी खोई हुई थी कि मुझे कुछ महसूस ही नहीं हुआ और मेरे सामने पड़ा था। उसने मुझे एक नज़र देखा और कहा कि तुम चुड़ैल हो क्या, या किसी की रूह? मैंने उसकी तरफ देखा। उसने कहा कि चुड़ैल ही होगी, ऐसे कब्रिस्तानों में कोई लड़की थोड़ी बैठी होती है, वो भी इतनी खूबसूरत। अच्छा तुम चुड़ैल हो, चलो ठीक है, बैठो यहाँ पे। वो उठने लगा कि फिर गिर गया। मैंने कहा कि तुम कौन हो, यहाँ क्या कर रहे हो? उसने कहा कि वो पीछे है ना, वो औरत मुझे छोड़ के चली गई है। कब से मैं उससे बातें कर रहा हूँ, जवाब ही नहीं देती मुझे। पहले नाराज़ होती थी तो मुस्कुराकर मना लेता था, अभी सब कुछ करके देख लिया, मान के ही नहीं दे रही। वो जिस तरफ इशारा कर रहा था उस तरफ कब्रें ही कब्रें थी। मैंने कहा कि किसकी बात कर रहे हो? कहने लगा सलमा नाम है उसका, बीवी है मेरी, अभी शादी हुई थी हमारी, नाराज़ हो गई मुझसे। मैंने पीछे पलट कर देखा तो एक ताज़ा कब्र बनी हुई थी जिसके कतबे पर सलमा रहीम लिखा था। शायद वो उसकी बीवी थी जो इस दुनिया से चली गई थी और उसने उसका गम भुलाने के लिए शराब पी रखी थी, तभी वो इस तरह की बहकी बहकी बातें कर रहा था। यानी उसका दुख भी मेरे जैसा ही था। वो भी वहीं पर बैठ गया और कहने लगा कि तुम तो चुड़ैल हो, तुम्हें क्या पता जब कोई आपको छोड़ के चला जाता है तो कैसा लगता है। पता है, छीना है किस्मत ने उसे मुझसे। उसने भी जाना नहीं था, अच्छी भली थी बेचारी, बीमार भी नहीं थी। मैंने उस शख्स की तरफ देखा, वो अपने आप से बातें कर रहा था। अकेला हो गया हूँ, कौन मेरे लिए खाना पकाएगा, कौन मुझसे बातें करेगा, वो यही बोल रहा था। जब मुझे रुमान की एक बात याद आई, उसने कहा था कि हम दोनों इसलिए एक साथ खुश रहते हैं क्योंकि हम लोग एक जैसे हैं, वरना हमारे पास है ही क्या, सिर्फ हम दोनों और हमारी मोहब्बत। क्योंकि हमारी सोच एक जैसी है, दो एक जैसे लोग ही एक साथ अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं, साथ खुशी खुशी रह सकते हैं। और एक बात हमेशा याद रखना कि बहादुरी जिंदा रहने में है। मर जाना तो बहुत आसान होता है, लेकिन जिंदा रहना बहुत मुश्किल होता है। आसान काम हमेशा बुज़दिल लोग करते हैं, जबकि मुश्किल काम बहादुर लोगों के हिस्से में आते हैं। पता नहीं मुझे अचानक से क्या हुआ, मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे दिल में लगी गिरह खुल गई है। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी सारी परेशानी दूर हो गई है, जैसे अल्लाह ने एक साथ ही मुझे सब्र अता कर दिया है। मैंने उस आदमी की तरफ देखा और कुछ सोचने लगी। मैंने उसे कहा कि क्या हुआ था तुम्हारी बीवी को? कहने लगा कि 3 दिन पहले एक सड़क पर हादसा हो गया उसका। एक बड़ी वैगन आ रही थी, वो रिक्शे से टकरा गई, वो भी रिक्शे में बैठी थी और कुछ और लोग भी। मेरा दिल अचानक से बैठ गया क्योंकि मेरा शौहर भी उसी रिक्शे में बैठा था जिसमें उसकी बीवी बैठी थी। मैंने अगले ही पल अपने आंसू साफ कर लिए और उसकी तरफ हाथ बढ़ाकर कहा कि मेरे साथ चलोगे? उसने मुझे देखा और कहा कि पर तुम तो मर चुकी हो, तुम तो चुड़ैल हो। मैंने कहा कि नहीं, मैं अभी जिंदा हूँ। उसने मेरा हाथ थाम लिया और मैं उसे सहारा देते हुए वहाँ से चली गई। मुझे ऐसा लगा था कि मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है और ये मेरी ज़िंदगी का नुक़्ता इख्तिताम है, लेकिन ऐसा नहीं था। ये मेरी ज़िंदगी का आगाज़ था। मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था, मैंने वही किया जो मैं कर सकती थी, और शायद इंसान हमेशा वही करता है जो वो कर सकता है। अगर रुमान कहीं होता, कहीं से मुझे देख रहा होता,
तो वो भी यही चाहता कि हमेशा मैं खुश रहूं। इसीलिए मैंने यही किया। हम दो एक जैसे लोग ही एक दूसरे को संभाल सकते थे, वो दूसरे के गम को समझ सकते थे। हम दोनों वहाँ से चले गए, उन दोनों को वहीं छोड़कर। बस यही हमारी कहानी थी। लेकिन एक बात का बहुत शिद्दत से एहसास होता है कि मेरा रोमान से शादी करने का फैसला गलत था। इसलिए नहीं कि उसकी ज़िंदगी कम थी, क्योंकि ये तो सिर्फ अल्लाह को पता है कि किसकी ज़िंदगी कितनी है। वो इसलिए क्योंकि ये फ़ैसला मैंने अपने माँ बाप के ख़िलाफ़ जाकर लिया था और मुझे ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए था। और शायद ये सज़ा मुझे मेरे माँ बाप की दुआ से मिली हो। वैसे तो कोई भी माँ बाप ऐसा नहीं चाहते और ना वो कभी भी अपनी औलाद को बद्दुआ देते हैं। लेकिन जब औलाद हद से ज़्यादा तंग करने लगे, माँ बाप का दिल दुखाए, तो उनकी नाराज़गी के सबब अल्लाह भी नाराज़ होता है। और ये सज़ा शायद मुझे इसीलिए मिली। मोहब्बत करना गलत नहीं, पसंद की शादी करना भी गलत नहीं, लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि जब माँ बाप और तमाम घर वाले हंसी खुशी इस रिश्ते को कबूल करें। अगर माँ बाप हंसी खुशी आपको घर से उसके साथ रुखसत नहीं करते तो आप ऐसा कोई कदम ना उठाएं, वरना बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। शादी से पहले तमाम लोगों को यही लगता है कि हम गुजारा कर लेंगे, हम छोटे से घर में रह लेंगे, हम आधी रोटी खाकर गुजारा कर लेंगे, बस मोहब्बत होनी चाहिए। तो ऐसे जोड़े जो ये सोचते हैं कि कुछ भी हो जाए, शादी तो अपनी पसंद की करनी है, चाहे भूखा क्यों नहीं रहना पड़े। मेरी ये बात याद रखिएगा, जब घर में गुर्बत आती है तो अक्सर मोहब्बत पिछले दरवाजे से निकल जाती है। शायद ही कोई ऐसा जोड़ा हो जो हर हाल में साथ निभाता है, वरना जब गुर्बत घर में आती है और मुश्किल वक्त आता है और किसी वक्त भूखा भी रहना पड़ता है, तो ये जिंदगी भर साथ निभाने के वादे करने वाले अक्सर हवा की बेटी को तलाक दे देते हैं। ये एक ऐसी तलख हकीकत है जिसे मानना थोड़ा मुश्किल है। दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।